Yes, so this is the topic. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. डायरेक्ट कोट है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है. जिन लोगों ने थोड़ा इससे पहले लिखा है उनके लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए. बट अगर किसी ने कुछ क्रिएटिविटी इसमें यूज की है, समथिंग समथिंग, तो यू कैन टॉक अबाउट इट वट एवर डायमेंशंस यू हैव. तो हु विल स्टार्ट? प्लीज रेज योर हैंड्स जिन्होंने भी प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्म किया इसको. ओनली रेखा. दीक्षा आपने किया इसको? हाँ, ब्रेनस्टॉर्म. Yes, sir. ओके, so let's start. आप बताइए, how would you like to introduce this essay and right? Sir, I? Yes, Diksha. Okay, sir. So, sir, I started this essay with a fictional story in which there is a person called as Oliver, and he was preparing for some prestigious exam, but he was not able to clear it. So somehow he has. So, am I audible? Yes, you're audible. Yes. Okay, so but he was doing hard work, but he was not able to make that exam. So he tried for another exams because his family was poor, and he was the only bread earner, and he keep on giving the exams, and finally he landed up in a company where he got so much promotions and he was well paid, and at the same time he was working for the society, the ultimate goal for which he was giving those prestigious exams. At the same time, there was another person who was Oliver's friend. He was successful at that prestigious exam, but after 1 year of the service, he was suspended because of the charges of corruption. So all the story which I have narrated about the Oliver and his friend shows that either success or the failure, both to manage both we need courage. Although success is not final and failure is not fatal, but in order to manage both these extreme ends of our life, we need courage, because courage helps us to maintain the success, and in case of failures, it helps us to handle those failures. So, sir, next dimension is I covered about the courage, and I started with the Aristotle's golden mean, and because the one important element of his golden mean was courage. So, for him, the courage. Sorry, Diksha. I guess you're talking about Plato's virtue, na? Not Aristotle mean. Plato's virtue में आता ना, cardinal virtue में courage is one of the cardinal virtues, not. Sir, Aristotle has a golden mean, na? Golden mean में courage का क्या है उसमें something? Yes, I sir, don't he has. remember. Temperance का सब था वो. Okay, sorry, मतलब I was a little. Okay, ठीक है. Aristotle का golden mean, right? Yes, sir. Okay. Because he want to say that we have to balance between cowardice and extremely Okay. like strong person. Okay, so extreme bravery and extreme cowardice, that kind of Yes. thing, right? Okay. ठीक. Moving ahead, हाँ जी. And sir, in courage, then I explained that what is courage. That is the bravery where we have to face and act towards the situations, those situations which are not in favor for us, or which are painful for us. So how we face those situations and act against those situations, that is the courage. And then I started with the first dimension, where I said that courage helps us to handle success, how it helps us to handle success. Some people who got success, but as it is said that power corrupts and absolute power corrupts, absolutely. So in this we can give the examples of Ashneer Barovar and the Arjikar College principal's case, the alleged those allegations against them. And at the same time, we have the people who were successful, like Ratan Tata. They have fame, but they have the courage to handle that fame, and they use that fame in a proper manner. And the other dimension is that where the courage helped the people to manage the failures. And the good example we have is our president, Miss Draupadi Murmu, where she faced very unpleasant situations in her life, but even then
she had shown courage and became successful. Similarly, when we talked about the success part of Mr. Ratan Tata, we can similarly see the failure part of him, where his nano experiment was a failure, but even then he took up the entire courage and embarked on the other like businesses where he succeeded. ठीक है. And sir, should I continue, sir? Yes, continue. And sir, other part is now the question is that how we should develop this courage. So in order to develop courage, firstly, we should have faith in ourselves that we can fight all the situations in the life. And second thing, sir, we need to manage our emotions, that is the anger, because whenever we face the negative situations, firstly, we blame the situations unless rather than focusing on ourselves. So we need the emotional intelligence where we should focus on ourselves and manage our emotions. And so the third aspect is that as Swami Vivekananda has said, that we have to focus on the things where we can control. There is a larger circle and there is a small part of the circle where we which shows the things which are under our control. So we should focus on these things. With these things, we can develop the courage. And so moving on the other hand, sir, although the success, we have talked that success and failures are not that much important, but at the same time, we are humans and we need positive and negative reinforcements. Like recently, our Chief Justice of India has said that we should measure the performance of our judges based on their we should give the performance based incentive. We should measure their performance. And in companies also, companies give the incentives to the people, and in civil services also we have the civil services awards. So we need to measure our success, measure our performance in the terms of success and failures. And in the end, sir, it depends upon the person that how we quantify our success and failures. For some people, small success and failures are like the part of the life, and they take it as a motivation. And for some people, these success and failures become the larger part of life. They need to understand that they are just the small part of our life. And at the end, sir, I quoted Buddha, where he said that our desires, as humans, we all have desires, and because of these desires, we have goals, and these goals lead us towards the success and failures. And same Gautam Buddha has suggested us the Madhyam Marg, and by following that Madhyam Marg, we can inculcate the values of courage, where we can handle these success and failures. So I think, sir, this can complete the whole cycle of desires and courage. Yes, okay. Good flow. A few things you could have added in it, but yeah, I'll come back to you. Yeah. Yes, Sandeep. Sir, I started the essay by narrating the story about Chandrayaan 2 and how its failure had been gut-wrenching for the nation. But just four years later, after the failure of Chandrayaan 2, we started the Chandrayaan 3 ka jo mission tha, we started that, and we were successful in that process. And not just that, we did not stop there. We did not dwell on that success, and we did not declare that Chandrayaan 4 was a final success. We have started preparing for Chandrayaan 4, Sukrayaan, Mangalyaan, and all of those, the subsequent missions. So yahan se we understand that when the failure came for ISRO, it was not a fatal failure, and they had the courage to continue. And when they had success, they did not declare it as an ultimate thing, and they went on for other missions as well. So this is how I introduce my essay, and then I go on to talk about the fleeting nature of success. I attempt to address the first part of the topic, that is the success kitna sa fleeting hota hai, it's not final. And then so first usko main bolta hu, the first point I dwell is complacency and inertial rut create karta hai. So the success aa jata hai. So when we start ruminating over the success that we have already achieved, that it creates a bit of complacency.
So उसको justify करने के लिए I've given the example of Nokia. सर जो नोकिया था एक फिनिश मोबाइल कंपनी था, and it once upon a time a leader of mobile manufacturing companies and had the maximum market share, but they actually started enjoying the position in the market and did not do anything that others were doing. For example, they did not accept the Android OS, and they were very much bullish about, very much arrogant about sticking to Microsoft OS, and that's how they started losing out on the mobile manufacturing company, mobile manufacturing market share. तो ये है पहला पॉइंट. Arrogance, you can say they did not change, ना, not arrogance, but they became adamant, ना. Adamant. ने जो किया, that is good because they have already succeeded in that, right? तो यहाँ पे सर मैं लिखा कि they become a victim of their own success when they registered the adoption of Android OS. तो ये मेरा पहला पार्ट. फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखा कि सक्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने के ऊपर के वजह से लैक ऑफ इनोवेशन होता है सर. एंड वी lack of innovation. Okay. Sir, in this process, we try to extract maximum utilitarian value from our past achievements, and without preparing for the future. तो ये क्या करते हैं ना सर, इसके लिए इसको जस्टिफाई करने के लिए I gave the example of Green Revolution, sir. Sir, in India, Green Revolution was a massive hit. Now it addressed the problem of food security, and it also ensured that our import bills are also coming down. So and on the top of that, it was adding massive value to the agriculture, as a sector in the economy. But so the success could not be sustained for very long, and there was no further research in the agri-tech. The modernization of agriculture did not happen. So उसके चलते क्या हुआ सर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो था, फूड सिक्योरिटी तो इन लोगों ने मेंटेन कर लिया, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी डिड नॉट हैपन सर. It also led to the problem of disguised unemployment. इनइक्वालिटी सर हुआ, फिर ड्रजरी हुआ क्योंकि देयर वाज नो मॉडर्नाइजेशन, सो इट लेड टू. बहुत एक्सटेंड मत करो इस चीज को ना, एक्सटेंडेड जैसे एक ही लाइन पे लिखा है मैंने सर, एक ही लाइन में ये सर. ओके ठीक है. और एंड लॉट ऑफ फार्मर सुसाइड सर हैपेंड. तो ये क्या हुआ कि जो ये सारे चीजें वाज अ फॉल आउट ऑफ एन आउटडेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम. ओवर ड्वेलिंग ऑन अ सक्सेस ना, इनिशियल सक्सेस के ऊपर यू आर ड्वेलिंग टू मच, यू आर नॉट इनोवेटिंग ऑन दैट. Yes, sir. और सर क्या होता है कि अगर when we gleefully accept our position in the market or our whatever success we have already achieved, then we मतलब हमारा competition हमसे आगे निकल जाता है. तो इसका एग्जांपल सर मैंने कोडैक और सोनी के बीच में जो केस स्टडी है उसको लाया है. सर कोडैक क्या था कि they were very much invested in making real cameras, and when the digital cameras came into the picture, they did not shift to the digital camera because उस टाइम पे मार्केट पे डिजिटल कैमरास की एक्सेप्टेंस नहीं थी. तो उस टाइम पे सोनी क्या किया, दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द डिजिटल कैमरा स्पेस. बहुत जल्दी उन्होंने मार्केट नीड्स को रिस्पॉन्ड किया, और वो पास्ट की चीजों पे ज्यादा उसको नहीं बैठे. तो देन धीरे धीरे कोडैक का सफाया हो गया, मतलब दे कंप्लीटली लॉस्ट ऑल देम टू सोनी. सर ये I move to the next segment where I talk about how failure is not fatal, and how मतलब उससे क्या होता है, failure का क्या what is the importance of failure. So यहाँ पे सर I talk about the achievement orientation is my first part. तो उसमें सर मेरे दो सब पॉइंट्स है. उसमें एक है finding motivation and quest for success. सर in this section I write about Thomas Alva Edison. उनका जो कोट है कि I found 1,000 different ways that do not work. तो achievement orientation के बारे में सर I discuss here. The second point is that कि failure gives us an opportunity to face adversities. तो it gives us a chance to introspect, and ये resilience and courage develop करने के लिए help करता है. For example, sir, in the year 2020, in the Border Gavaskar Trophy, India versus Australia, India with a very India in the first state got out for 36 runs only, but after that they bounced back from that point and they won that series in Australia. So if you do not watch cricket, India winning in Australia is a very big thing, and that time we did not have a full strength team as well. So it is huge. मतलब अभी जो क्रिकेट नहीं देखते उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन it was a huge achievement. इतना तो सबको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट जीतना is an achievement ना.
समझ में आएगा सबको। या सो वहां से बाउंस बैक करने के लिए फेलियर गिव्स अस अ चांस टू मतलब इंट्रोस्पेक्ट टू रेट्रोस्पेक्ट एंड इट हेल्प्स अस टू गेट बैक टू ट्रैक एज वेल। इट गिव्स अस अ रियलिटी चेक। फिर सर इट हेल्प्स अस टू रीस्ट्रेटेजाइज। रीस्ट्रेटेजाइज हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक मौका मिलता है। और सर प्रीवियस एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने के लिए हेल्प मतलब उस पर बिल्डअप करने के लिए वी गेट अ चांस। सर इसके लिए आई गेव द एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स। So he was actually removed from his own company Apple because of his extravagant expenditure. But later he came back and he launched touchscreen mobile phone iPhone, which was a massive success. So he re-strategized after facing failure. So his failure was not fatal. So after touching these dimensions of failures, इसके implications क्या रहता है in broadly? ये next section में जो implication रहता है कि society में सर so in society the implication of this quote कि Raja Rammohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, they faced stiff resistance and failure while they were trying to champion the women rights. सती प्रथा को हटाने के लिए हो, वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हो, विडो रीमैरिज को इम्प्रूव करने के लिए हो। सो these people faced stiff battle initial days में. Later they were very successful to bring about a change in the society, and that's why we remember them. But in the economy, sir, I have mentioned about BOP crisis, balance of payment crisis जो हुआ था. Sir, in this case, we ran out of foreign exchange currency. हमारे पास बस कुछ ही महीने के 10 दिन के लिए ही foreign exchange currency था. You don't have to go into unnecessary details ना. ऐसे में हाँ कोई जरूरत नहीं कितने दिन का क्या था. Just give a broader idea ना. BOP crisis आप लिख रहे हो. People are able to understand there only है ना. उसको unnecessarily बढ़ाने की जरूरत नहीं है. Correct, sir. So I mentioned about BOP crisis. वहां से आके bounce back करके right now we are at the cusp of being the 4th largest economy in the world. तो वहां से हम कैसे IMF bailout पे dependent होने से अभी to being the leader in the global economy, वहां का जर्नी सर यहाँ पे मैं implication लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. Sir, in the political field as well, यहाँ पे write about how this quote is relevant in politics कि ये हमारा डेमोक्रेसी का जो रेजिलेंस है उसको बढ़ाता है. फॉर एग्जांपल जब हमारा इमरजेंसी हो गया था हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उसको कर्टेल किया गया. बट बिकॉज वो जो था उसको मैं फेलियर की तरह देखता हूँ इमरजेंसी को. लेकिन वहां से जो बाउंस बैक किया वो फेलियर फेटल नहीं रहा. हमने बाउंस बैक किया with the 44th Amendment Act and then बाकी सो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन किए गए, जो चेंजेस किए गए उसके बारे में. फिर सर I go into the counter argument part of this. The counter argument में I start with a quote by Albert Einstein. He writes, "Insane is doing the same thing and expecting different results." So sometimes just holding the courage and doing the same thing over and over again, it is not going to help you a lot. मतलब you will again stuck in the loop. तो उसका सब फर्स्ट में मैं पहला डायमेंशन इसको ये कवर करता हूँ. लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जो अगर होता है आपका, इफ यू आर नॉट बीइंग सेल्फ अवेयर, आपका जितना भी फेलियर फेस कर लो वो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला आगे चल के, अगर if you do not have self awareness. Second point is that if you lack strategy. सर सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान's failure with wars in India. उन्होंने 4 बार they declared war on us and every time lost to us. That shows that उनका सेल्फ अवेयरनेस नहीं है. फिर the second dimension I cover there is lack of strategy and retrospection. Here I give an example of a UPSC aspirant जिसके 4-5 अटेम्प्ट्स हो गए हैं लेकिन फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रहा. इट्स बेटर आइदर वो सोच कुछ और करे या फिर अच्छे से रीस्ट्रेटेजाइज करे. यहाँ पे ये कोट फिर उसके लिए डेट्रीमेंटल हो जाता है इफ ही कीप्स ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. थर्ड एस्पेक्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस लाता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इफ वी कीप कंटिन्यूइंग आवर परसूट्स, so it will create overconfidence within us and eventually we are going to fail again and again and again. How overconfidence यार, फेलियर से किसको ओवरकॉन्फिडेंस आया अब तक? सर हम छोड़ नहीं रहे ना. छोड़ नहीं रहे, that is different ना.
बट दैट इज नॉट ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब किसके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे इसलिए नहीं छोड़ रहे, मैं ये सोचा। नहीं, दैट फेलियर डज नॉट ब्रिंग ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बोलेगा कि मैं 2 बार फेल हो गया मैं कर लूंगा, राइट? कर लूंगा इज डिफरेंट, राइट? बट पर्सनल थॉट, राइट? यू कैन राइट इट इन सम अदर वे कि वो जैसे आपने ऊपर लिखा ना, स्ट्रेटजी इज नॉट चेंजिंग द स्ट्रेटजी, दैट इज द रीजन। आई डोंट थिंक कि कोई भी 3 बार अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो चौथी बार वो इसलिए नहीं कर पाता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, नहीं। 3 बार जिसका हो गया उसका चौथी बार नहीं होगा, दैट इज द रीजन ऑफ बीइंग। तो इसमें आप इसको वैसे लिख सकते हो ना, सक्सेस इज नॉट फाइनल। ना प्रीलिम्स में आप हर बार सक्सीड कर रहे हो, मेंस में आप हर बार सक्सीड कर रहे हो, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो दैट माइट बी कि एक लेवल का सक्सेस मिल रहा है बट फाइनल सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, राइट? गो इट द अदर वे, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा वेग हो जाता है नहीं तो, राइट सर, राइट सर, यस। फिर इन कंक्लूजन सर मेंशन्ड अबाउट द वर्च्यू ऑफ जो प्लेटोस जो कार्डिनल है उसमें जो करेज का इंपॉर्टेंस है वो लिख के देन आई मेक ए रिकॉल फैक्टर कि चंद्रयान 4 या फिर बाकी जो मिशन से इसरो के वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है कि हमें ऑलवेज शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड नेवर एवर गेट इनटू इनर्शिया कि वो सक्सेस मिल गया तो वो खत्म बात, ऐसे करके सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। वन इश्यू इज कि आपने करेज सिर्फ कंक्लूजन में डाला है, राइट? ओके। दीक्षा के ऐसे में एक इश्यू था कि शी मेड द होल ऐसे अबाउट करेज, ठीक है? आप दोनों का ऐसे है, उसको अगर हम मिला देंगे, राइट, द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम योर पार्ट है ना, योर थिंग कि हाँ सक्सेस क्यों फाइनल नहीं होती या फेलियर क्यों फैटल नहीं होता, राइट? द थिंग दैट यू हैव गिवन, राइट? एंड देन the part that Diksha told ना, explained कि how courage जो है वो सक्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फेलियर को से like it can save us from the failure as well, ठीक है? अगर इस सबको हम अगर वो कर देंगे तो then it will be a better ऐसे, क्योंकि देखिए आप मिस कर गए हैं, राइट? इन सम एस्पेक्ट ये देखिए ये वाला है, ये वाला एस्पेक्ट है आपने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? Similarly Diksha discussed this part but in very touch करके चलेंगे इस पार्ट को, right? You have to stay here as well and you have to give equal importance to this part as well, right? Yes. Yes, Rekha? Yes sir. हाँ जी। एक तो चीज ये सर की थोड़ा सा मुझे भी लगता है मैंने करेज नहीं लिखा, तो एक्चुअली मैंने क्या सोचा इसको लेके मैं बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो ये ऐसे था इसमें था कि जीतना मोटिव नहीं है, ना ही हार जाना कोई वो है। जरूरी ये है कि हम कंटिन्यू रहें, हम प्रोग्रेस करते रहे, हम इम्प्रूव करते रहे। फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी आएंगे, कहीं पे भी रुकना नहीं है। तो ये सोच के मैंने लिखा, इसलिए दैट इज द एसेंस ऑफ द एसे। हाँ, बट रुकना नहीं है, इसके लिए करेज चाहिए, दैट इज आल्सो। हाँ, ये मैं बताती हूँ आपको लगेगा कि मिसिंग है थोड़ा, ठीक है? मैंने स्टार्ट किया MS धोनी से, देखिए वही क्रिकेट टीम, उन्होंने ICC वर्ल्ड कप जीता, देन उसमें हार गए, लेकिन हम उनको आज भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेलियर में भी लगे रहे और सक्सेस में भी लगे रहे, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने लिखा है, मैंने इसी तरीके से लिखा है सक्सेस इज नॉट फाइनल पे। इस पे मैंने एग्जाम्पल डाला है कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जीत गए थे, बट क्या हुआ, बाद में वो हार गए। सेकंड फिर मैंने लिखा कि अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा फिलोसफी टाइप डालने की कोशिश करती है। लाइफ जो होती है वो जर्नी होती है, और सक्सेस और फेलियर उसके कुछ इवेंट्स होते हैं, हमें मतलब उसमें ही पूरी लाइफ को नहीं ढूंढना होता। फिर मैंने इसमें डाला कि हाँ, फेलियर इज नॉट फेटल। इसके लिए मैंने डाला कि जो फेलियर, क्योंकि होप हमेशा रहती है, होप खत्म नहीं होती। इसका एग्जाम्पल मैंने वो सेम डाला कि एडिसन वाला। मैंने इसमें लिखा कि हाँ, फेलियर इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आपकी मिस्टेक्स पता चलती हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप मतलब अपने आप को चैलेंज करते हो, वही वाली बात। फिर मैंने लिखा है, ठीक है, मैं लिखा है कंटिन्यूटी मैटर करती है लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो ही लाइफ को ब्यूटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए मैंने डाला क्योंकि जब हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम लर्न करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और बेटर वर्जन ऑफ अपना निकाल के लाते हैं। फिर मैंने इसको एडिशन वाले एग्जांपल से फिर से कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने एक एग्जांपल डाला वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप जीत गया था पर जापान हार गया था।
पर दोनों के दोनों ही डिवास्टेटेड खत्म हो गए ऑलमोस्ट, पर दोनों ने कंटिन्यू रखा अपनी इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखा। और आज जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूरोप में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हम कह सकते हैं। ये मैंने तीनों चीज़ों को साथ में लेके लिख दिया। फिर मैंने लिखा कि ये पॉजिटिव बता दिए, अब नेगेटिव बताते हैं कि अगर हम सक्सेस को फाइनल मान लेते हैं तो क्या होगा। जब हम सक्सेस को फाइनल मान लेंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंट, वही लेजीनेस, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। हम हायर जो कॉस्ट जो हमें आगे पे करनी पड़ेगी वो हम देखते नहीं हैं। तो इसमें मैंने फिर पृथ्वीराज चौहान वाले को फिर से ले आई कि भाई सेकंड बैटल ऑफ तराइन में वो हार गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट बैटल से सीखा नहीं कुछ, सक्सेस उसको मान के उसको फाइनल मान लिया। फिर मैंने लिखा नोकिया वाला एग्जाम्पल कि सेम वही चीज़ जो उन्होंने लिखी थी। फिर मैंने लिखा जब हम फेलियर को फैटल मान लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस चला जाएगा आपका। फेलियर फैटल है तो मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया, तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन और सबसे खतरनाक इसका होता है कि सुसाइड जो देखने को मिलते हैं। लोग फेलियर को फैटल मान लेते हैं इसीलिए सुसाइड करते हैं, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद मैंने इस एक और चीज़ लिखी कि जैसे स्टार्टअप कल्चर होता है, तो स्टार्टअप तो मोस्टली वो फेल करते हैं, मोस्टली फेल करते हैं, क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम इस तरीके का ही होता है स्टार्टअप की, आप ट्राई कर रहे हो वहाँ पे कंटिन्यू। अगर आप फेलियर को फेटल मान रहे हो तो फिर आप स्टार्टअप कल्चर प्रोग्रेस नहीं होगा, इससे आपकी इकोनॉमी नहीं प्रोग्रेस होगी। तो मैंने ये डालने की कोशिश करी इसमें। फिर मैंने एक चीज़ इसमें ये डाली कि क्यों हम इजीली बाइनरी में चले जाते हैं कि सक्सेस और फेलियर ही सब कुछ है। तो इसके लिए मैंने बस ये डाला कि इजी होता है अंडरस्टैंड करना। हम हमेशा से चीज़ों को ब्लैक वाइट, मैन वुमेन, गुड बैड की फॉर्म में समझते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हैं, हम मटीरियलिस्टिक सक्सेस और फेलियर को समझते हैं, इसलिए भी हम बाइनरी की फॉर्म में आसानी से समझते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा फिलोसफी डाली हुई कि लाइफ जो है किसी एक सक्सेस और फेलियर से डिसाइड नहीं होती। लाइफ जो है बहुत सारी चॉइसेस जो हम लेते हैं, हम कंटिन्यू करना चूज करते हैं, फेलियर के बियॉन्ड भी, सक्सेस के बियॉन्ड भी, तब हम कहते हैं कि यस सर। फिर मैंने लिखा है कि सक्सेस जो होती है, सक्सेस फाइनल नहीं है क्योंकि उसके आगे भी चैलेंजेस हो सकते हैं। फेलियर फैटल नहीं है क्योंकि उसके आगे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, पर दोनों का फायदा हमें तभी मिलेगा जब हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड देन मैंने एक कोट लिखा, मुझे नहीं पता सेट हुआ कि नहीं हुआ, बट मैं लिखा कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन एंड शेडो विल फेस बिहाइंड यू। फिर मैंने थोड़ा सा नीचे ये चीज लिखी, देयरफॉर वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड नॉट बेड, इंस्टीड वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू, no matter the circumstances, no matter the outcome will be, we should always have the courage to keep going in life. ठीक है, कोट भी अच्छा है। कोट ये तो यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी ने नहीं, ये शायद अभ्यास में पूछा था, शायद अभ्यास में पूछा था। हाँ यार देखिए एग्जांपल्स तो इसमें बहुत सही है, लेकिन एक चीज मैंने जो एग्जांपल आपने मिस किया, आई थिंक कि अब्दुल कलाम का, थॉमस एडिसन का एग्जांपल एक्चुअली मैं इसलिए जनरली अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ स्टूडेंट को, हर कोई लिख रहे हैं लाइक कि ये मान के चलिए कितने 12,000 पीपल आर राइटिंग एसेज, ठीक है, 2 ऐसे हर कोई लिख रहा, मतलब 24,000 एसेज अगर लिखे जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 एसेज में थॉमस एडिसन का एग्जांपल आ रहा है। तो बहुत घिस गया वो एग्जांपल, राइट, लाइक जिस लेवल पे घिस सकते हैं उस लेवल पे घिस गया है। तो ट्राई की, मतलब थॉमस एडिसन जैसे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, राइट, फ्रॉम वेरी, जेके रोलिंग्स का एग्जांपल मिल जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम तो है ही हैं, एंड इट वुड बी बेटर कि आप उनका एग्जांपल यूज करें इन जनरल, ठीक है। तो मतलब आप सबको पता उनकी स्टोरी, राइट, ही सक्सीडेड, स्टिल ही डिडंट स्टॉप, एंड ही सक्सीडेड इन द करियर एज अ साइंटिस्ट, एज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम उनको अपने आप को ही लुक्ड हिमसेल्फ एज अ टीचर, है ना। तो उस चीज को भी आप देख सकते हो ना, उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और थी, एंड टीचिंग इज नेवर एनीथिंग जो कि मतलब फाइनल सक्सेस रहेगा उनके लिए, राइट। तो यू कुड हैव रिटन इन दैट सेंस, एंड आपने भी वही वाला एस्पेक्ट है, करेज वाला जो एस्पेक्ट है इसमें मिस कर दिया है ना, कि आपने लिखा है कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो आप हर जगह, but also you have to like point out ना कि consistency है that will come from courage। ये हाँ जी रेखा बोलिए। जैसे सर अब करेज की बात करेंगे इसमें, तो वो एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा, डेफिनेटली प्रिस्क्रिप्शन में है ना भेज सर, सकते हो, यही
प्रिस्क्रिप्शन में भेज सकते हो ना, हाउ करेज लाइक हाँ, हेल्प करता है कि सक्सेस को भी हैंडल कर सकते हैं, फेलियर को भी हैंडल कर सकते हैं, और कैसे करेज डेवलप कर सकते हैं इन दोनों को हैंडल करने के लिए, वो सब चीजें हैं। यस सर, मैं एक्चुअली मैं बता रही हूँ सर आपको, मेरे को इसमें लगा कि मैंने थोड़ी क्रैश लैंडिंग कर दी लास्ट में जाके। आई फील अब्रप्ट एंड हो गया ना ऐसे का। हाँ हाँ राइट, आपने देखो एग्जांपल दिया, देन यू एंडेड अब्रप्टली, राइट, आपने एक यस जो प्री कंक्लूजन है वो मिस कर दिया। हाँ यस सर, वही मैं कह रही थी। संदीप, आपके ऐसे के जो एग्जांपल्स थे मोस्टली सब टेक्निकल थे, राइट, कोडैक वर्सेस सोनी हो गया या नोकिया हो गया, राइट, या फिर स्टीव जॉब्स हो गया, राइट, मोस्टली यू वेंट इनटू ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट एग्जांपल्स। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए, एग्जांपल को एक साइड पे आप मत लेके आइए, राइट। बिजनेस केस स्टडीज बहुत डाल दिया। हाँ, बिजनेस, वो भी सारे आईटी रिलेटेड बिजनेस हो गए ना। इफ यू आर राइटिंग बिजनेस, नैनो का एग्जांपल आप ही ने दिया था? नहीं, रेखा ने दिया। नहीं, रेखा ने दिया नैनो so का। there is this YouTube channel that is called Think School. I would recommend everyone to watch that channel for business case studies. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स वहां से मुझे मिल जाते हैं। So if anyone is interested, Think School. ओके, ठीक है। And also look into it, अगर कुछ लगा तो I'll also share, है ना? Yes, sir. ये सारे एग्जांपल्स मुझे सर वहां से ओवर द ईयर मुझे मिले थे, तो मैंने डाल दिया सर। आपने सारे की उसमें डाल दिए लेकिन। Yes, sir. राइट, ठीक है, नो इश्यूज, नॉट लाइक, बट थोड़ा सा होना चाहिए, डाइवर्सिफाई कीजिए उसको, है ना। ऐसे का देखिए पॉइंट यही है, जैसे मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि वी आर यूजिंग वेरी कॉमन एग्जांपल्स, है ना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स की हम वो करते हैं। तो थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई कीजिए कि उनको मोर जस्टिफाई करें। अच्छा, आपका जो वो वाला पार्ट भी था ना, इकोनॉमिक वाला, पॉलिटिकल वाला, सोशल एंगल वाला, दैट इज ऑल्सो नॉट मच नीडेड फॉर द एसे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो ऊपर डायमेंशंस लिख रहे हो ना, सक्सेस इज नॉट फाइनल, है ना, तो उसी में आप उसको रादर देन आपने क्या किया, पहले सक्सेस इज नॉट फाइनल डाला, फिर फेलियर इज नॉट फैटल डाला, फिर आपने अलग से एक और पार्ट टाइप बनाया एसे में जहां पे आपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और वो सारा सर इसका इम्प्लीकेशंस डालने की कोशिश की, जो ये दोनों चीज का सिंथेसिस है, ऐसे सोच के सर मैंने डाला। लेकिन वो आपका दोनों चीजों का सिंबल वो तो नहीं था ना, जैसे आपने पॉलिटिकल एग्जांपल दिया, दैट वाज ऑन द वन वर्टिकल ओनली, है ना। अच्छा, आप उसको वैसे शो करना चाह रहे थे, ओके, गॉट इट। दोनों का सिंथेसिस सर। इमरजेंसी वाज अ फेलियर बट इट वाज नॉट फाइनल, है ना। हाँ बट वो फिर सक्सेस, मतलब इट वाज नॉट फेटल बट सक्सेस इज नॉट फाइनल, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ओके, इन सर्टेन सेंस। तो उसको अगर आप दिखा रहे हो तो ऊपर ही डालो उसको, जहाँ पे आप लिख रहे हो ना कि फेलियर इज नॉट फेटल, ओके, तो थोड़ा ज्यादा रिफाइन हो जाएगा, नहीं तो एक और अननेसेसरी कंपार्टमेंट बन जाएगा। सर एक पॉइंट में, एक डायमेंशंस में हम दो एग्जांपल्स डाल सकते हैं क्या? ज्यादा डाल सकते हैं, एग्जांपल इज नॉट एन इश्यू, लाइक उसको आप ऐसे लिखो ना, इन इकोनॉमिक स्फीयर आल्सो, ठीक है, लाइक करेक्ट। तो उस टाइप से आप उसको कर सकते हो, राइट। इन इकोनॉमिक स्फीयर वी हैव फेस्ड द थिंग दैट सक्सेस इज नॉट ऑलवेज फाइनल, है ना, या फिर फेलियर इज नॉट ऑलवेज फैटल। तो मैंने क्या किया, ये दोनों अनस्ट्रैंड किया, फिर दोनों स्ट्रैंड को सिंथेसिस पैक करने की कोशिश की विद दैट इम्प्लीकेशन पार्ट, बट आई अंडरस्टैंड, हाँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, सिंथेसिस प्रॉपर लैंड नहीं हो रहा है ना वहाँ पे, राइट। हाँ सर, इंस्टेड आई कैन डिवोट मोर स्पेस इन राइटिंग अबाउट हाउ करेज का क्या रोल रह सकता है यहाँ पे, एंड हाउ करेज हैज हेल्प्ड, मैं करेज का वहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ। हाँ, वो पार्ट आप थोड़ा, हाँ वही उस एस्पेक्ट को अगर आप जहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा उसी से रिलेटेड बना रहे हो, वहाँ करेज को हाईलाइट कर सकते हो, राइट, उस पार्ट में। जी सर, जी सर। स्टार्टअप वाला बहुत अच्छा पॉइंट था, रेखा का था पॉइंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम फेलियर, क्योंकि स्टार्टअप उसमें थोड़ा डेटा भी डाल सकते हैं आप लोग ना, स्टार्टअप कितने, ऑलमोस्ट कितने 92% फेलियर है स्टार्टअप का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, थोड़ा चेक कर लेना, आई गेस 8% सक्सेस है शायद स्टार्टअप्स का, मे बी इवन लेस, ठीक है। तो वो फैक्ट्स भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो, बट स्टिल। हाँ जी रेखा, बोलिए। एक चीज जो मुझे फील हुई सर इस ऐसे में, कि पहले मैंने देखा इसको, मेरे को लगा आसान है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा है सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फाइनल, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि इसके एक, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 वाला एग्जांपल डाला ना, मैं सारे एग्जांपल उस तरीके से रहे कि सक्सेस फाइनल नहीं, बट उसी में ही सक्सेस फाइनल नहीं आए, फेलियर फेटल नहीं आए, और करेज भी उसके साथ ही आए, बट मैं उतने वैसे एग्जांपल लिख नहीं पाई। देखिए, एक साथ इतने ऐसे नहीं मिलेंगे आपको बहुत सारा, फिर अगर एक साथ ऐसे लिखने लग जाओगे तो आपके पास कंटेंट कम रहेगा, है ना। कंटेंट अगर सिंगल
एग्जांपल आप ऐसा ढूंढोगे जहाँ पे पहले फेल हुए फिर सक्सेस हुए फिर दैट वाज नॉट फाइनल, या फिर पहले सक्सेसफुल हुए देन फेल्ड एंड देन अगेन सक्सेसफुल, है ना। सैमसंग इज अ गुड एग्जांपल इन इंडिया के मार्केट के लिए। सैमसंग का एंड्रॉइड आया तो इट गॉट लाइक वेरी पॉपुलर, देन देयर वाज अ टाइम जब सैमसंग बहुत नीचे चला गया था एंड देन इट बाउंस्ड बैक, ठीक है। तो सैमसंग का सक्सेस था, इट वाज नॉट फाइनल, देन फेलियर वाज नॉट फेटल एंड देन इट केम बैक, बाउंस्ड बैक। ऐसे बहुत सारे आप स्पोर्ट्स के एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। और जो जब संदीप ने बात की थी एक कि यू ड्वेल ऑन द पास्ट सक्सेस, राइट, इसमें तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री से आप एग्जांपल लेके आइए, ट्राई टू ब्रिंग इनोवेटिव एंड थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट, है सर ना। मैंने संजय दत्त का सोचा था। तो यू कुड हैव रिटन इट, है ना। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे क्या होता है, इनिशियल सक्सेस मिलती है, ठीक है, यू गेट सो हाई कि यू डोंट वर्क, कंसिस्टेंसी छोड़ देते हो, देन फॉलिंग डाउन, राइट, देन फेलियर के बाद सम ऑफ देम कम बैक, देन अगेन सक्सेस। तो आप ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वो कॉन्ट्रास्ट शो कर सकते हो, XYZ पर्सन को कंपेयर कर सकते हो कि एक पर्सन इनिशियल सक्सेस मिली, couldn't handle the success, failed and came back. एक पर्सन इनिशियल सक्सेस मिली, couldn't handle the success, failed, did not try again, failure, ठीक है। एक पर्सन इनिशियली मतलब कि नहीं मिली सक्सेस, ट्राई सक्सेस मिल गई, राइट। तो ये तीनों एस्पेक्ट आप एक सिंगल इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से आप यू कैन लाइक यू कैन टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली, मतलब माय पर्सनल फेवरेट स्टोरी, ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यू कैन टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। अब बहुत सारे तो उसमें आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स में आपको टेनिस में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे पीपल कम एक या दो बार दे विन एंड देन दे वैनिश, ठीक है, क्योंकि वो अपने उसको सक्सेस को वो नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते प्रॉपरली, राइट। मल्टीपल एग्जांपल खासकर स्पोर्ट्स में, और मतलब आप लोग इन जनरल भी, मे बी मैं थोड़ा ज्यादा स्पोर्ट्स और फिल्म्स को वो करता हूँ तो यूज करूंगा, और आप लोग इसलिए कीजिए क्योंकि थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन आएगा आपके ऐसे में, नहीं तो एग्जांपल्स वही कॉमन हो जाएंगे, मोस्टली साइंटिस्ट के एग्जांपल, लीडर्स के एग्जांपल्स, हम वहीं पे रह जाते हैं, राइट, बिजनेस, साइंटिस्ट, लीडर्स, है ना। या फिर अगर हम स्पोर्ट्स पे भी एग्जांपल लेके आते हैं तो बहुत कॉमन एग्जांपल हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि उनका नाम भूल गया, तो द वन आर्चर, शीतल कुमारी, राइट, दिस पैरालंपिक्स, शीतल देवी, या तो उनका एग्जांपल हम लिख रहे हैं, इट्स अ गुड एग्जांपल, है ना। बट हम हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लाइक एग्जांपल संदीप गिव द एग्जांपल ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्यों, क्योंकि चल रही है, राइट, नहीं तो शायद नहीं याद आता आपको। इन जनरल व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, हम उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा हमें याद रहती है। आप जब मेंस लिखोगे तो एक चीज आप, जिन्होंने मेंस लिखा है उनको पता होगा कि जब आपके आंसर्स आएंगे ना, तो उन 4-5 महीने के जो इवेंट्स होंगे ना, वो आपके आंसर्स में जरूर आएंगे। रीजन कि हमने तभी पढ़ा होता, टॉप ऑफ द हेड होता, हम वो लिख देते हैं। आपने मेंस लिखा है ना, आपको पता होगा, है ना। पूनम तभी हंस रहे हो आप, है ना, कि राइटिंग में हाँ वही चीजें आ रही है, क्योंकि आई नो इट फॉर श्योर कि होता है ऐसा, बट वी हैव टू बैलेंस दिस थिंग ना। और उसके लिए कुछ पुरानी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, पुरानी इन द सेंस 1.5-2 साल पुरानी, मे बी 20-30 साल पुरानी, ठीक है। और वैसे विंस्टन चर्चिल का कोट था, अगर आप लोगों में से किसी को अगर पता होता कि विंस्टन चर्चिल का कोट है तो थोड़ा और इजी हो जाता आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी, राइट। रुचिका, आपने लिखा है ये वाला ऐसे, ब्रेनस्टॉर्म किया है, या दोनों में से कोई ऐसे? आई गेस लाइब्रेरी में होंगे, बट अगर किया है तो लेट मी नो। फर्स्ट ऐसे आप लाइब्रेरी में? ओके, नो इश्यूज, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा सा ऐसे क्लियर है। इट वाज नॉट वेरी इजी ऐसे टू राइट, है ना, जैसा कि लग रहा था। सक्सेस एंड फेलियर हाँ थोड़ा है, लेकिन करेज का एलिमेंट लेके आइए, थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन डालिए, और तीनों के ऐसे में एक जो चीज मिसिंग थी वो इंट्रोडक्शन और बॉडी का जो कनेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा एक्सप्लिसिटली डालिए, राइट। इट विल गिव अ गुड नो स्ट्रक्चर टू योर ऐसे, फ्लो अच्छा बन जाता है उससे आपके ऐसे का, राइट। So this was about the first essay. We'll start the second.